Good morning, friends. In today's lecture, we are going to study about dissolution of partnership firm. Now, in the case of a partnership firm, dissolutions are of two types. One is a dissolution of firm and one is a dissolution of partnership. When there is an entire closure of the business, when all the partners' connection with the partnership firm gets closed, all the assets are realized, liabilities have been paid off, and surplus, if any, is distributed among the partners. That means entire business gets closed. It is called as a dissolution of firm. However, if any of the partner goes out from the partnership firm by way of retirement, or if there is any death, or if there is any insolvency, and the remaining partner continues with the partnership firm, so वो पर्टिकुलर पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म से बाहर चला जाता है, तो उसका कनेक्शन पार्टनरशिप फर्म से विल गेट ब्रेक. देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. तो सच रिकॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वेयर द कनेक्शन ऑफ दैट सिंगल पार्टनर गेट्स ब्रेक विद द अदर पार्टनर्स. So when there is a disconnection of that one partner with the other partner, it is called as a dissolution of partnership. However, if there is an entire closure of the business, सभी partners का connection एक दूसरे से break हो जाएगा और business बंद हो जाएगा, तो then it is called as a dissolution of firm. So this is a basic difference between dissolution of firm and dissolution of partnership. On your screen, just refer that. Dissolution of a firm, it covers what? Dissolution of firm are of two types. Dissolution of firm, the activities of the firm close down, and dissolution of partnership means some of the partners goes out by way of death, retirement, etc. So this is what. Now dissolution जो है वो दो तरीके के होते हैं. We are talking about dissolution of firm, जहाँ पे business आप पूरी तरीके से बंद कर रहे हो. So in this connection, dissolution will be without the intervention of the court, यानी कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, और partner within themselves they will decide to close down the business by some way or the other. And second part is dissolution with the intervention of the court, यानी आप वहाँ पे कोर्ट की सहायता लेंगे for the purpose of closing down the business or for the purpose of dissolution of the firm. We will see all that. Now first case is dissolution without court intervention, यानी partners within themselves they will voluntarily decide to dissolve the partnership firm. So what are the cases they have covered is by the consent of the partners, by contract between the partners, compulsory dissolution, that is in the case of insolvency of all the partners or all partner except one, or business becoming unlawful. There may be certain cases where the government has passed a notification where they will make the business as unlawful, and in that case आप वही अगर business कर रहे हो तो आपको compulsorily dissolve करना पड़ेगा. या dissolution due to certain contingency, क्या future event कुछ ऐसा होता है, that is on account of expiry of fixed term, compulsory completion of adventure, that means जो business आप कर रहे हो वो अब complete हो गया, या जो term आपने fix किया है वो expired हो गया, on account of death और on account of insolvency. लेकिन इसके लिए एक रूल ऐसा है कि अगर दो से ज्यादा पार्टनर्स है और एक की डेथ होती है या एक इंसॉल्वेंट होता है, और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ऐसा क्लॉज है कि बाकी के पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इन दैट केस इट इज अ डिफरेंट मैटर. देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वेयर द कनेक्शन ऑफ दैट individual partner will get break and remaining partner will continue with the partnership. And dissolution by notice, all these cases we are going to refer now in detail. So what they have given, first one is nothing but dissolution of the firm and dissolution of partnership. मैंने आपको बोला कि dissolution of firm का meaning क्या है, कि सभी बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा और सभी पार्टनर्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और उनके बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज सिंपली
some of the partner or one of the partner will get retired or will go out of the partnership firm, and his connection with the other partner will get break, and other partner may continue with the partnership. So that is called as a dissolution of partnership. So what they have given, section 39 provides that the dissolution of partnership between all the partners of the firm is called as a dissolution of the firm. Thus the dissolution of the firm means the discontinuation of the jural relation existing between all the partners. Jural relation is a legal relation जो एग्रीमेंट के द्वारा उन्होंने एक रिलेशन क्रिएट किया था, वो रिलेशन अब ब्रेक हो रहा है, उसको टूट रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. But when only one or more partner retires or become incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency, insanity, the partnership, that is the relation between such partner and the other, that is a continuing partner, is dissolved, but the rest may decide to continue. In such a case, there is in practice no dissolution of the firm. The particular partner goes out, but the remaining partner may carry on the business of the firm. It is called as a dissolution of partnership. It is simple as that कि अगर दो से ज्यादा पार्टनर्स है और एक आध पार्टनर अगर रिटायर्ड हो रहा है या फिर वो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी के पार्टनर may continue with the partnership firm and it will be called as a reconstitution, and such case will be called as a dissolution of partnership and it will not be called as a dissolution of firm. So this is a basic difference between dissolution of firm and dissolution of partnership. In the case of dissolution of firm, on the other hand, the whole firm is dissolved. That means the entire business will get closed. The partnership terminated as between each and every partner of the firm. So this is called as a dissolution. Now these are the basic difference between dissolution of firm and dissolution of partnership. First one is continuation of business. में क्या बोला है कि पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व होता है तो बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो उस केस में बिजनेस विल कंटिन्यू. वो पार्टनर का रिलेशन बाकी के पार्टनर्स के साथ ब्रेक हो जाएगा और बाकी के पार्टनर्स बिजनेस आपका कंटिन्यू करेंगे. इट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएशन ऑफ business in the partnership. It does not affect the continuation of business. It involves only reconstitution of firm. So in the case of dissolution of partnership, it is simply a discontinuation of the relation of that partner with the other partner. Business will continue. Winding up. In the case of dissolution of firm, there is a winding up. Entire business will get wind up. You are going to collect the amount from debtors. You are going to sell off the available stock. You are going to realize the amount. You are going to sell off all the assets available with the partnership firm. जो भी पैसा realize होगा, you are going to pay off to the outsiders, creditors, bankers, and whatever surplus remain, it will be distributed among all the partners in the agreed ratio. So this will be called as a dissolution of winding up of partnership. So this happens in the case of dissolution of firm, but it is not a case in the case of dissolution of partnership. In the case of dissolution of partnership, where the relation of some of the partners are reconstituted, in that case there will be a revaluation of assets. There is every possibility that if some of the partner goes out of the partnership firm, again you are going to reconstitute the firm, and at the time of reconstitution you may revalue the asset. So what it says, in the case of dissolution of firm, it involves winding up of the firm, require realization of the asset and settlement of liability. Whereas in the case of dissolution of partnership, it involves reconstitution and require only revaluation of assets and liabilities. You are going to only revalue. आप आपके assets की revalue करेंगे as per the market rate. आप उसको revalue करेंगे. Order of the court, a firm may dissolve by the order of the court. There is every possibility that the dissolution of the firm may be without the intervention of the court, or may be with the intervention of the court, or may be without the intervention of the court. कुछ केसेस में आप कोर्ट का सहायता लेंगे, कोर्ट की आप हेल्प लेंगे, and with the help of the court you are going to dissolve the partnership firm. But this does not happen in the case of dissolution of partnership. Dissolution of partnership is not ordered by the court. It is simply a
agreement between that outgoing partner with the remaining partners. Scope. It necessarily involve dissolution of partnership. It may or may not involve dissolution of firm. In the case of dissolution of partnership, there is a possibility that कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस तरीके का एग्रीमेंट है कि अगर कुछ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के बाहर जाते हैं और बाकी के पार्टनर बचे हुए एटलीस्ट 2 है, तो उस केस में दे में कंटिन्यू. तो इन दैट केस इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन. या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म में क्लॉज है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से निकलता है तो उस केस में फर्म भी आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा. तो इन दैट केस दैट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल रिजल्ट इन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अगर बाहर जाता है तो वहां पे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होगा और उसके साथ साथ आपने ऐसा एग्रीमेंट ऑलरेडी करके रखा है कि आपको फर्म बंद करना है. तो उस इवन दो देर आर मोर देन और एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, but still there is an clause that it wants the dissolution of firm. तो वहाँ dissolution of partnership के साथ साथ dissolution of firm भी होगा. Final closure of book. In the case of dissolution of firm, books will get closed, whereas in the case of dissolution of partnership, books will not get closed, it will continue. It involves final closure of the books. It does not involve final closure. So these are the basic difference between dissolution of firm and dissolution of partnership. Now, modes of dissolution. Now, what are the different methods of dissolution that has been given under section 40 to 44 that we are going to study. First one is dissolution without the order of the court or voluntary dissolution. That means you are not going to take the help of the court. You yourself will get dissolved. Partnership पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा या पार्टनर्स खुद ही डिसाइड करेंगे कि उनको डिसॉल्व करना है. तो व्हाट आर द डिफरेंट केसेस कवर्ड. फर्स्ट इज डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40. सिंपल, दे विल डिसाइड अमंग देमसेल्फ. एग्रीमेंट दैट इज एग्री. पार्टनर्स खुद के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाएंगे कि नाउ वी शुड गेट डिसॉल्व. इट मे बी वॉलंटरी डिसॉल्यूशन. देर इज नथिंग लाइक अ कंपल्शन. उनके बीच में होगा, कुछ भी होगा. इट मे बी एनी कंडीशन. पार्टनर्स मे से दैट कि दे आर नॉट एबल टू गिव अ सफिशिएंट टाइम टू द पार्टनरशिप फर्म, so they may make an agreement for the purpose of dissolution, and this dissolution will be called as dissolution by agreement. A firm may dissolve with the consent of all the partners or in accordance with the contract between the partners. Partnership is created by contract and it is also terminated by contract. Creation के टाइम पे भी आपने एग्रीमेंट बनाया था, उसी तरह आप टर्मिनेट कर रहे हो तो आप आपके बीच में एग्रीमेंट बनाएंगे और आप टर्मिनेट करेंगे. Compulsory dissolution. There are certain cases where you will have to compulsorily get dissolved. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फिर एक को छोड़ के सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता. तो ये केसेस के अंदर आपको कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट इट हैज बीन सेड, अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बट वन आर एडजस्ट इंसॉल्वेंट. यानी सभी पार्टनर्स एक को छोड़ के क्या हो गए, या फिर इवन एंटायर ऑल द पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर एक को छोड़ के बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए. तो वन पार्टनर कैन नॉट कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप फर्म, ही विल हैव टू गेट, द फर्म विल हैव टू गेट डिसॉल्व. When some event has happened which make it unlawful for the business of the firm to be carried on. बिजनेस इस तरीके का हो गया है कि वो अनलॉफुल हो गया है, यानी कोर्ट का कोई नोटिफिकेशन आया है या गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया और उन्होंने आप जो बिजनेस कर रहे हो जो पहले लॉफुल था, अभी उसी बिजनेस को उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया. जैसे कि अगर आप देखेंगे व्हीकल का एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ तो 2 स्ट्रोक व्हीकल आर नॉट अलाउड. उन्होंने अभी बोला है कि सभी व्हीकल हैज टू बी 4 स्ट्रोक. उसका मीनिंग क्या है कि आप पहले अगर देखते होंगे तो स्कूटी आती थी जिसमें ऑयल आप सेपरेटली डालते थे. पेट्रोल के अंदर यू यूज टू मिक्स ऑयल. अभी यू डोंट मिक्स ऑयल बिकॉज ऑल द व्हीकल आर 4 स्ट्रोक व्हीकल. तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 स्ट्रोक व्हीकल आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल, यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर दैट. तो जब आप
टू स्ट्रोक व्हीकल, सपोज आपका टू स्ट्रोक व्हीकल मैन्युफैक्चर का आपका बिजनेस था, तो जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया था, जब तक वो लॉफुल था, वंस द नोटिफिकेशन हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट और बाय द लॉ, तो दैट बिजनेस हैज बिकम अनलॉफुल। तो आपको कंपलसरी रहेगा, आपके पास आप हायर मशीनरी यूज करने का एडवांस मशीनरी यूज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो इस सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंपल्सरीली क्लोज योर बिजनेस। तो वहां पे कंपल्सरीली डिसॉल्यूशन। एग्जांपल दिया हुआ है, अ फर्म इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग अ पर्टिकुलर केमिकल and a law is passed which bans on the trading of such particular chemical, the business of the firm become unlawful and so the firm will have to be compulsorily dissolved। आप एक टाइप का केमिकल में ट्रेड कर रहे थे जब तक वो लॉफुल था, लेकिन नोटिफिकेशन आया कि अब आप ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो इट विल रिजल्ट इन कंपल्सरीली डिसॉल्यूशन। देन देयर इज डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कॉन्टिंजेंसी। कुछ इवेंट ऐसे हो गए जो या तो आई मीन फ्यूचर इवेंट ऐसे हुए जिसके वजह से आपको पार्टनरशिप बंद करना पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप वाज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो दैट पर्टिकुलर पीरियड हैज एक्सपायर, यू क्लोज डाउन द बिजनेस, कंपल्सरीली डिसॉल्यूशन, यू विल हैव टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। और अदरवाइज दैट पार्टनरशिप was for a specific venture, specific business, that particular venture, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट, एक सिंगल अपार्टमेंट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपने पार्टनरशिप फॉर्म की थी, वो कॉम्प्लेक्स का कंप्लीशन हो गया, पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। तो व्हाट इट हैज बीन गिवन, subject to the contract between the partner, a firm can be dissolved on the happening of any of the following contingency, that is event. If constituted for a fixed term, by the expiry of that term, partnership has been formed for a specific period, the period is expired, firm will get dissolved. However, contrary is possible that even after completion of that period, partnership may continue. लेकिन these are certain circumstances they have given कि अगर वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए 2 साल के लिए 2 साल कंप्लीट हो गए, फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा इज पॉसिबल दैट दे मे नॉट डिसॉल्व, दे मे कंटिन्यू, दे मे टेक द अदर इवेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंटिन्यूइंग द पार्टनरशिप। तो इवन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, पार्टनरशिप में कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते और वो टाइम आ गया, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। If constituted to carry out one or more adventure or undertaking by the completion thereof, आपने एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप की थी, वो स्पेसिफिक बिजनेस कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। By the death of the partner, by the adjudication of partner as an insolvent, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्लॉज है कि अगर रिमेनिंग पार्टनर आर 2 और मोर देन 2 और पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू हो सकता है, तो उस केस में फर्म डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आल्सो, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोवाइड दैट द फर्म विल नॉट डिसॉल्व इन एनी ऑफ द अफोरमेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस, सच प्रोविजन इज वैलिड। ये चारों केसेस में देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट के फर्म डिसॉल्व नहीं भी हो सकता है, आगे पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू हो सकता है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज है। और लास्ट क्या है, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मैंने आप लोगों को बोला था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में वन ऑफ द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पे चाहे मर्जी, जब तक आपके मर्जी में आएगा, जब तक अगर आपको लगता है कि नहीं आप डिसॉल्यूशन करना है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस देगा और कंसर्न सभी पार्टनर का लेके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। Where the partnership is at will, the firm may dissolve by any partner giving notice in writing to all other partner of his intention to dissolve. If the date is mentioned, वो नोटिस जो पार्टनर डिसॉल्यूशन की नोटिस अगर बाकी के पार्टनर्स को देता है और उस नोटिस के अंदर अगर डेट मेंशन की गई है, तो उस डेट से डिसॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डेट मेंशन नहीं की गई है, तो वो नोटिस बाकी के पार्टनर्स को जब मिलेगी, वो डेट से द डिसॉल्यूशन विल कम इनटू इफेक्ट।
If the date is mentioned in the notice, the firm is dissolved from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is mentioned, from the date of communication of the notice. अगर डेट मेंशन है तो वो डेट से डिसोल्यूशन इफेक्टिव रहेगा, और अगर डेट मेंशन नहीं है तो जब वो पर्टिकुलर नोटिस कम्युनिकेट होगा वो डेट से डिसोल्यूशन विल गेट इफेक्ट. तो दीज आर द डिफरेंट केसेस जहाँ पे dissolution will be dissolution without the intervention of the court. Now there are certain cases where you will take the help of court for the purpose of dissolution that we are going to study. Dissolution with court intervention. कौन कौन से cases के अंदर आप court का help लेंगे for the purpose of dissolution? That means बाकी के partners court में जाएंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिसोल्यूशन को ऑर्डर दीजिए ताकि हम हमारी पार्टनरशिप को क्लोज डाउन करें. तो व्हाट आर दोज केसेस वेयर वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ? फर्स्ट वन इज insanity of partner. Second one is permanent incapacity of partner, misconduct of partner, permanent breach of agreement by any partner, transfer of interest by any partner, and perpetual losses in the business, that is a continuous losses in the business. Come on, we will just refer all these in detail. What they have given. Dissolution of firm by the court is necessitated when there is a difference of opinion between the partners regarding the matter of dissolution. कोर्ट में क्यों जा रहे हैं पार्टनर्स? क्योंकि एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे. there is a dispute between the partners. तो इसीलिए कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट को बोल रहे हैं आप हमें हेल्प करो डिसोल्यूशन की. अगर डिस्प्यूट एज सच नहीं है तो फर्स्ट केस डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट विद इन द पार्टनर्स देमसेल्फ. they are going to agree, they are going to make an agreement, they are going to make a contract and they will get dissolved. तो कोर्ट में जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि एक दूसरे की बात कोई भी नहीं सुन रहा है, इसीलिए कोर्ट में जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, where one of the partner has become insane, some of the partners may be willing to continue the firm and share profit with the insane partner, while the other partners may be insisting on the dissolution of the firm. क्या हुआ? एक पार्टनर हो गया पागल. अब कुछ पार्टनर बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, वो पागल हो गया तो उसको अपन साइड ट्रैक करेंगे, उसका प्रॉफिट उसके घर तक पहुंचा देंगे और बाकी के लोग बिजनेस करेंगे. उसमें क्या दिक्कत है? वो जो अगर पागल हो गया है पार्टनर, उसके घर वालों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बिजनेस में इंटरफियर ना करे, वो घर पे ही बैठे, बाकी के पार्टनर कंटिन्यू करते हैं बिजनेस और जो प्रॉफिट का उसका शेयर निकलेगा उसके घर पहुंचा देंगे. लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे हैं वो बोल रहे हैं नहीं, वो आ गया पागल, कंटिन्यू करने की अब कोई जरूरत नहीं है, बिजनेस को क्लोज डाउन करो. तो अब हो गया डिस्प्यूट. कुछ पार्टनर बोल रहे हैं बिजनेस कंटिन्यू करना है, कुछ पार्टनर बोल रहे हैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है. तो इस केस में अब क्या होगा? They will go to the court of law और कोर्ट उसका जजमेंट लेगा. कोर्ट या तो ऑर्डर करेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन या फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप कंटिन्यू करो बोल के. तो कोर्ट विल टेक इट्स ओन स्टैंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. कोर्ट पूरे सर्कमस्टेंसेस को जज करेगा एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि डिसीजन क्या देना है, कंटिन्यू करने का या फिर डिसकंटिन्यू करने का. Obviously, in these circumstances, intervention by the court becomes necessary on receiving the petition by the petition यानी request for the dissolution of the firm. The court is not bound to order dissolution and it enjoy complete discretion in the matter. It may or may not order for the dissolution of the firm depending upon the merit of the case. कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिसोल्यूशन का ऑर्डर देना है या फिर नहीं देना है. तो देर आर डिफरेंट केसेस जहां पे आप कोर्ट का हेल्प लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन. वन बाय वन वी आर गोइंग टू रिफर दैट. सेक्शन 44 enumerates the various ground on which a petition may be made to the court for the dissolution of the firm. कौन कौन से केसेस है? फर्स्ट वन इज insanity और unsound mind. अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर हो जाता है इनसेन, यानी अगर किसी पार्टनर की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो फिर बाकी के पार्टनर्स या फिर उस इनसेन पार्टनर का फ्रेंड कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करेगा कि आप इंटरवेन करो, आप ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप में इंटरवेन करो, दखल दो
और डिसाइड करो कि फर्म को डिसॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। व्हाट इट हैज बीन गिवन, वेयर अ पार्टनर प्रोवाइडेड नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, द कोर्ट मे डिसॉल्व द फर्म ऑन अ सूट ऑफ अदर पार्टनर और बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेंट पार्टनर। किसके रिक्वेस्ट पे? बाकी के पार्टनर्स के रिक्वेस्ट पे, या फिर उस पागल या फिर अनसाउंड पार्टनर के फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे कोर्ट इंटरफियर करेगा, कोर्ट इंटरवेन करेगा और डिसाइड करेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना है या फिर नहीं करना है। टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ऑब्वियसली if any particular partner has become sick for a short period of time, then that will not amount to insanity, तो उस केस में कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। सेकेंड इज परमानेंट इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मीनिंग है इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटी। इफ एनी पार्टनर बिकम इनकेपेबल किसी भी कारण से, वो इनकेपेबल हो गया है क्योंकि उसको इंसेन हो गया इसलिए इनकेपेबल हो गया, या फिर वो इतना बीमार हो गया है कि वो अपनी ड्यूटी अपने एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में पार्टनर्स फिर से कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगेन यू इंटरवेन एंड सी टू इट के पार्टनरशिप फॉर्म गेट डिसॉल्व। When a partner other than the partner suing has become in any way permanently incapable of performing his duty as a partner, then the court may dissolve the firm. Such permanent incapacity may result from physical disability or illness. किसी भी कारण वो या तो परमानेंट बहुत सिक हो गया है या उसको बड़ा कोई बीमारी लग गया है और वो अब इनकेपेबल हो गया, तो उस सर्कमस्टेंसेस में other partners can go to the court of law and they will request the court to intervene and see to it that the firm get dissolved. Then there is a concept of misconduct. अगर कोई particular partner is continuously misconducting, that means misappropriating, गलत काम कर रहा है, लोगों से एग्रीमेंट कर रहा है और उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस सर्कमस्टेंसेस में it will be called as a misconduct. Where a partner other than the partner suing is guilty of conduct which is likely to prejudicially affect the carrying of the business, the court may order for dissolution of the firm by giving regard to the nature of the business. It is not necessary that the misconduct must relate to the conduct of the business. The important point is the adverse effect of misconduct on the business. Misconduct, if the partner is not negligence in the performance of the duty, he is not properly performing his duty, as a result of which it is harming the part, prejudicially affect the carrying on the business। का मीनिंग क्या है कि उसके मिसकंडक्ट के वजह से पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो पर्टिकुलर पार्टनर अपनी ड्यूटी को डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, ही इज ऑलवेज नेग्लिजेंट, और वो आपकी बात भी नहीं मान रहा है। आप उसको बोल रहे हो कि आपके कंडक्ट बराबर नहीं है, आप आपकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि अब आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट को रिक्वेस्ट करो कि ये बात हमारी नहीं मान रहा है, ये मिसकंडक्ट कर रहा है, जिस मिसकंडक्ट के वजह से पार्टनरशिप फर्म का कंटिन्यूस नुकसान हो रहा है। ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनरशिप में वो दूसरे मिसकंडक्ट कर रहा है जिसका इफेक्ट आपको आपके पार्टनरशिप फर्म पे आ रहा है, तो उस केस में भी यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड यू कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू ऑर्डर फॉर डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट इज परमानेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। परमानेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मीनिंग है कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर आउटसाइडर के साथ एग्रीमेंट एंटर कर रहा है और उसको ब्रीच कर दे रहा है, यानी परफॉर्म नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जानबूझ के एग्रीमेंट कर रहा है और कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जा रहा है, जैसे कि एडवांस पैसा ले रहा है और वो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी बाकी के पार्टनर्स कोर्ट को इंटरवेन करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। परसिस्टेंट ब्रीच, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस ब्रीच, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ब्रीच करते जा रहा है,
प्रॉमिस करने के बाद प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई नो दैट यू आर अवेयर विद द मीनिंग ऑफ ब्रीच, वी हैव ऑलरेडी सीन अंडर द फर्स्ट शर्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मीन्स नॉट परफॉर्मिंग द एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज where a partner other than the partner suing willfully or persistently commit breach of agreement relating to the management of affairs of the firm or the conduct of the business, or otherwise so conduct himself in a matter relating to business that it is not reasonably practicable for the other partner to carry on the business in partnership with him, then the court may dissolve the firm at the instance of other partners. Following comes in the category of breach of contract. Embezzlement, embezzlement का meaning है मिस एप्रोप्रिएशन, पैसा चोरी करना या पैसे को मिस एप्रोप्रिएट कर लेना, बाहर के बाहर कस्टमर से एडवांस लेना और मिस एप्रोप्रिएट कर लेना, या फिर फर्म में आए हुए पैसे को सेल्फ के चेक से विड्रॉ करके उसको मिस एप्रोप्रिएट करना, कैश बॉक्स में से कैश चोरी करना। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ एम्बेजलमेंट। कीपिंग एरोनियस अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट्स नहीं रख रहे हो आप, गलत अकाउंट्स रख रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, आपने एग्रीमेंट किया है कि 10,000 के ऊपर कैश बॉक्स में कैश नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप बात नहीं मान रहे हो, कंटिन्यूसली कैश एक्सेस रह रहा है बुक्स में, हो सकता है आपका इंटेंशन उसमें गलत हो, व्हाई यू आर कीपिंग एन एक्सेस कैश। रिफ्यूजल टू शो द अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, पार्टनर जो है बाकी के पार्टनर्स को अकाउंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करने दे रहा है, तो देयर में बी इल इंटेंशन बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनर। इन ऑल दिस केसेस अदर पार्टनर विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे विल आस्क देम टू इंटरवेन। इफ वन ऑफ द पार्टनर कीप्स एरोनियस अकाउंट्स and omits to enter receipt, or if there is a continued quarrel between the partner or there is such state of thing that destroy the mutual confidence of the partner, the court may order for dissolution. So these are the cases of misappropriation or persistent breach of agreement. Then there is a transfer of interest. Transfer of interest में अगर किसी पार्टनर का आउटसाइडर को या फिर कोई गवर्नमेंट के रेवेन्यूज देना बाकी है और अब वो रेवेन्यू देने के लिए उसके पास पर्सनल पैसा कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप से जो पैसा मिल रहा है सिर्फ वही पैसों को लेके वो आउटसाइडर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज को चुका सकता है, तो उस केस के अंदर कोर्ट ऑर्डर करेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिसॉल्यूशन। वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग has transferred the whole of his interest in the firm to a third party or has allowed to his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue. Arrears of land revenue का मीनिंग है कि गवर्नमेंट के कुछ ड्यूज पेंडिंग है और वो पार्टनर उसके पर्सनल अकाउंट में उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, और अब एक ही पर्याय है, एक ही सोल्यूशन अवेलेबल है कि जो पार्टनरशिप फर्म से जो पैसा मिलने वाला है वही पैसे से वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे ऑफ करे या लैंड रेवेन्यू पे ऑफ करे, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर करेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिसॉल्यूशन। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ अदर पार्टनर। दस ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट डज नॉट बाय इटसेल्फ डिसॉल्व द फर्म, but the other partner may apply to the court to dissolve the firm if such a transfer occur. अब एक चीज ऐसी है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर किसी पार्टनर को अपना इंटरेस्ट आउटसाइडर वाले को देना है, ट्रांसफर करना है, तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें बाकी पार्टनर्स का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। बाकी पार्टनर के परमिशन लेके वो अपना इंटरेस्ट आउटसाइडर को ट्रांसफर कर सकता है, एंड वी हैव सीन दैट that outsider will be called as a transferee, but that transfer is not entitled to interfere in the conduct of the business, nor he can verify the books of account. So he can do that. So in that case there is no question of dissolution. बाकी के पार्टनर्स पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे, जो भी वो उस ट्रांसफरर पार्टनर का शेयर निकलेगा वो ट्रांसफरी को पे ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पूरी की पूरी चीजें विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स हो रही है। लेकिन कुछ केसेस में जहां पे किसी पार्टनर को कोई गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पे करना है और बाकी के पार्टनर्स इस सर्कमस्टेंसेस के लिए रेडी नहीं है, तो बाकी के पार्टनर्स कोर्ट को बोलेंगे कि भाई आप इंटरवेन करो, आप ऑर्डर करो डिसॉल्यूशन का, और एक बार में वो पार्टनर का जो पैसा निकल रहा है उसको दे दिला के मोकला करेंगे, सो दैट वो उसके गवर्नमेंट ड्यूज पे ऑफ कर देगा। तो इन दैट केस
the government or a court may order for the purpose of dissolution. Next case is continuous or perpetual losses. Continuous और perpetual losses का मीनिंग क्या है कि बिजनेस विदाउट लॉस आप नहीं कर सकते, यानी आप जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आउट ऑफ डिमांड हो गया है और अब आपको चलाना है, अगर इतने बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज है और अब उनकी सैलरी अगर पे करना है, आपका प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है या प्रोडक्ट इतना नहीं बिक रहा है जिससे उनकी सैलरी निकले, तो देयर विल बी कंटिन्यूस लॉसेस. जस्ट understand the example and number of public sector companies like HMT, Hindustan Machine Tools, or you can take the example of Nokia. तो these are the running companies, लेकिन all of a sudden क्या हुआ, उनका डिमांड कम हो गया. लेकिन अगर एम्प्लॉयज है तो उनको आपको सैलरी तो पे करना है, लेकिन आपके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, तो इस सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा, तो देयर विल बी कंटिन्यूस लॉसेस. तो उस सर्कमस्टेंसेज में यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरवेंशन एंड ऑर्डर ऑफ डिसॉल्यूशन. Where the business of the firm cannot be carried on except at a loss in future also, the court may order for the purpose of dissolution. इस केस में कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा, for the purpose of dissolution. और लास्ट है just an equitable ground. just an equitable यानी अगर कोर्ट को in order to prevail a justice या फिर इक्विटी ग्राउंड के ऊपर, यानी कोई भी ग्राउंड में कोर्ट को लगता है कि जस्टिस के लिए या फिर इक्विटी के लिए ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होना चाहिए, तो उस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट विल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ डिसॉल्यूशन. व्हाट इट सेज, वेयर द कोर्ट कंसीडर एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल for the purpose of dissolution, it may dissolve the firm. The following are the cases for the just and equitable ground. कौन से केसेस जस्टिस प्रिवेल करने के लिए कौन से केसेस कोर्ट को लगता है कि डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास करना जरूरी है. फर्स्ट इज डेडलॉक इन द मैनेजमेंट. देयर इज अ कंप्लीट डेडलॉक. कोई भी मैनेजमेंट पे काम करने तैयार नहीं है, वहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है, डेडलॉक हो गया है. या फिर where the partners are not in talking terms with between them. I have told you that one of the important condition for continuing of the partnership is there has to be a friendly environment, there has to be a transparency. However, if there is an unfriendly environment, एक दूसरे से खुन्नस अगर हो गई है, तो just imagine how they can live together. घर में अगर ऐसा एनवायरनमेंट हो तो कितना कंजेस्टेड हो जाता है. उसी तरह पार्टनरशिप में अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट है तो उस सर्कमस्टेंसेस में पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो सकती. लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, देयर इज अ बिग लॉस. इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि अब वो नुकसान की भरपाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो वही है कि आप कोर्ट को इंटरवेन करने का रिक्वेस्ट करेंगे. गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप का पूरा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा के पूरा नुकसान कर डाला, तो ये सब केसेस के अंदर आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इंटरवेन करिए और डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास करिए. कोर्ट पूरे सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करेगा और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं डिसॉल्यूशन का ऑर्डर देना जरूरी है, तो ये सब सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोर्ट डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म का ऑर्डर देगा. तो ये दो केसेस है जहां पे फर्म का डिसॉल्यूशन हो सकता है, एक बिना कोर्ट के इंटरवेंशन से और एक with the help of court of law. I hope you have understood the concept. Still, if you have any doubt as regards to this topic, please ping me. Bye everyone.